Very good morning, children. Welcome to the psychology classroom. So, children, we are solving the objective type questions. I just hope you all are solving the questions with me. आप सभी भी मेरे साथ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और साथ ही साथ रिविजन्स कर रहे हैं. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल. We are doing the or we can say that the solving the question answer of the chapter 2 self and personality. In the previous one video we have discussed up to the question number 90. Question number 90. So basically in the two videos which I have made on the objective type question, that was on 26 and 27, that was covered the total 19 questions, 19 questions. So today we will move forward to that question in this video. So remind the date 28, okay? Chaliye. So moving to the next question, question number 20. Okay, everyone write it with me. Question number 20. All of the following are examples of sublimation. All of the following are examples of sublimation except it is an MCQ question, so you get an option also. Options are, the first option is A, competing in contact sports. Competing in contact sports. B option, painting nude pictures. Painting nude pictures. Option number C, robbing a bank. Robbing a bank. Option number D, competing in business. Competing in business. All of the following are example of sublimation except. सारे जो है वो sublimation के example हैं. इसमें पूछ रहा है, question is asking that सभी sublimation के example हैं except कौन नहीं है. So first of all you should know what is sublimation. Sublimation क्या है? Sublimation is also one of the defense mechanism. ये भी एक तरह का डिफेंस मैकेनिज्म होता है जिसमें बेसिकली काइंड ऑफ कंपटीशन होता है एक पर्सन का सेकेंड पर्सन से. काइंड ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप. सो इन फोर ऑप्शन में से कौन सब्लिमेशन के एग्जाम्पल सारे हैं बट एक्सेप्ट द रॉबिंग अ बैंक. सी ऑप्शन इज करेक्ट. C option is the answer of this particular question. ठीक है? If you all have written it down, so I got the board. Please take a screenshot or either write it down. ठीक है? It is something a new question for you all.
आई रब इट विद द होप कि आपने इसे लिख लिया होगा। चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 20 के बाद है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 अगेन एन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21 ऑब्जेक्टिव टेस्ट can provide valuable information about an individual's objective test can provide valuable information about an individual's unconscious activity Objective test can provide valuable information about an individual's unconscious activity. ये स्टेटमेंट है जिसे आपको बताना है कि इट इज अ ट्रू और फॉल्स। ये स्टेटमेंट ये कह रहा है कि जितने भी ऑब्जेक्टिव टेस्ट होते हैं वो वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं पर्सन के अनकॉन्शियस एक्टिविटी के बारे में। तो इज इट अ ट्रू और फॉल्स? ऑब्जेक्टिव टेस्ट से पर्सन के अनकॉन्शियस एक्टिविटी के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है या नहीं मिलती है? ये आपको बेटर पता है, मैंने डिस्कस किया है। तो आप आंसर बताएंगे कि उस पर्सन के अनकॉन्शियस एक्टिविटी के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है या नहीं मिलती है, बताइए। Objective test can provide valuable information about an individual unconscious activity. True or false? So, answer of this question is false. Objective test से unconscious activity के बारे में नहीं पता चलता, ठीक है। unconscious activity अगर जानना है तो आपको projective test यूज करना पड़ेगा instead of objective test. So, we discussed the two question over here. So if you want to write down the statement, so you can write it down. Now moving to the next question, question number 22. Question number 22. According to Adler is the name of psychologist, Alfred Adler. According to Adler, ये नियो फ्राइडेन थे। एडलर जो थे वो नियो फ्राइडेन थे, पोस्ट फ्राइडेन मतलब जो फ्रेड के बाद आए। सो अकॉर्डिंग टू एडलर, टू डेवलप अ हेल्दी पर्सनालिटी, टू डेवलप अ healthy personality, to develop a healthy personality, according to Adler, to develop a healthy personality, it is necessary to learn to express dash. So क्वेश्चन समझिए और इसको आंसर करने की कोशिश करिए। द फर्स्ट वन आई एम रबिंग, क्योंकि आई थॉट आप कंप्लीट कर लिए होंगे। दिस सेकंड क्वेश्चन 22 क्वेश्चन हैव एन ऑप्शन आल्सो। अकॉर्डिंग टू एडलर, ये कह रहा है कि एडलर के अकॉर्डिंग
एडलर के अकॉर्डिंग अगर हेल्दी पर्सनालिटी डेवलप करनी है, क्या चीज नेसेसरी है कि आप एक्सप्रेस करो या सीखो उसे एक्सप्रेस करने के लिए? एक्सप्रेस करने को क्या चीजें जरूरी हैं? ऑप्शंस आर ए सोशल इंटरेस्ट, ए सोशल इंटरेस्ट, बी सुपर ईगो, सी सेल्फ इंटरेस्ट, डी सेक्सुअल अर्जेस। ठीक है, तो आंसर करिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। एडलर के अकॉर्डिंग एक हेल्दी पर्सनालिटी डेवलप करने के लिए क्या चीज नेसेसरी है टू एक्सप्रेस करना? उन चीजों को एक्सप्रेस करना क्या चीज नेसेसरी? इज इट अ सुपर ईगो और सेल्फ इंटरेस्ट, सेक्सुअल अर्जेस की सोशल इंटरेस्ट? इजी टू आंसर, थोड़ा सा सोचेंगे तो समझ में आ जाएगा। फिर से रिपीट करें, एडलर के अकॉर्डिंग एक हेल्दी पर्सनालिटी डेवलप करने के लिए क्या चीज नेसेसरी है कि आप उसको एक्सप्रेस करो? सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए सोशल इंटरेस्ट। इट इज नेसेसरी टू एक्सप्रेस, लर्न टू एक्सप्रेस सोशल इंटरेस्ट। ठीक है, राइट डाउन द आंसर एंड विद देयर ऑप्शंस। Okay, I hope you all have written it down. So I rub the question and its options also. Okay, now question number up to the question number 22 we have discussed. Now moving toward to the question number 23. Question number 23. So the question number 23 is to the social learning theorist. Write down the question. To the social learning theorist. To the social learning theorist, each of the following to the social learning theorist, each of the following processes is important in the development of, फिर से बोल रहे हैं, टू द सोशल लर्निंग थ्योरिस्ट, जो सोशल लर्निंग थ्योरिस्ट है, ठीक है, उनके लिए ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस इज इंपॉर्टेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ. So the question, have you understand, do the social learning theorist, जो social learning theorist है, जो social learning theorist में जो social learning theory को प्रमोट करते हैं, जैसे कि बैंडोरा, ये social learning theorist हैं. ठीक है, तो social learning theorist ने कहा कि each of the following process is important in the development of personality एक्सेप्ट. ये अगेन इट इज अ एमसीक्यू क्वेश्चन जिसमें आपको ऑप्शंस दिए होंगे. ऑप्शंस आर ए बी सी डी. ऑप्शन ए इज क्लासिकल कंडीशनिंग. ऑप्शन बी इज modeling.
Option C is operant conditioning. Operant conditioning. And last is inferiority. So social learning theories ने हर एक प्रोसेस को इम्पोर्टेंट दिया है इन द डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी, एक्सेप्ट जिसको नहीं दिया. सो क्या आंसर होगा? सोशल लर्निंग थ्योरीज ने क्लासिकल कंडीशनिंग को भी इंपॉर्टेंस दी है, मॉडलिंग की भी बात करी है, ऑपरेंट. तो आंसर क्या है? इंफीरियरिटी. ठीक है, दिस इज योर आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. ओके, राइट डाउन द क्वेश्चन विद द ऑप्शन. So up to the question number 23 we have discussed. If it is written, so I am going to rub the board and move forward. Question number 24. After the 23 is the 24. It is a question of true or false. The extroversion dimension of the extroversion dimension of the extroversion dimension of the 5-factor model of personality, 5-factor model of personality, the extroversion dimension of the 5-factor model of personality has been experimentally validated. Has been experimentally, the extroversion dimension of the 5-factor model of personality has been experimentally validated. It is a statement and now you have to tell is it a true or false. ये ट्रू है या फॉल्स है. क्वेश्चन समझने की कोशिश करेंगे. ये कह रहा है कि एक्सट्रोवर्जन डायमेंशन, वन सेकेंड. ओके, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड द स्टेटमेंट चिल्ड्रन. इट वाज सेइंग दैट जो एक्सट्रोवर्जन डायमेंशन होता है 5-factor model of personality, 5-factor model of personality which is given by Paul Costa and McRae, जिसमें ओशन है एंड ओशन में E स्टैंड फॉर एक्सट्रावर्जन. सो ये कह रहा है कि एक्सट्रोवर्जन डायमेंशन ऑफ द 5-factor मॉडल ऑफ पर्सनालिटी हैज बीन एक्सपेरिमेंटली वैलिडेटेड. वो क्या है? एक्सपेरिमेंटली वैलिडेटेड है. सो यस, इट इज वेरी ट्रू. द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ट्रू. राइट डाउन दिस क्वेश्चन एंड इट्स आंसर ऑल्सो. ओके, did you have written it? Okay, I just hope आपने complete कर लिया. Now moving to the question number 25. Question number 25. Question number 25 हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं. इट इज अगेन अ ट्रू फॉल्स बेस्ड स्टेटमेंट. ठीक है, सो द क्वेश्चन नंबर 25 इज सोशल आइडेंटिटी. सोशल आइडेंटिटी social identity refers to those attributes. Social identity refers to those attributes
that make an individual. Social identity refers to those attributes that make an individual different from the others. That make an individual different from the others. True or false? क्या कह रहा है कि जो सोशल आइडेंटिटी है, सबसे पहले आपको पता है बच्चों की आइडेंटिटी इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, पर्सनल आइडेंटिटी एंड सोशल आइडेंटिटी। पर्सनल आइडेंटिटी वो आइडेंटिटी होती है पर्सन की जो उसके पर्सनल इंफॉर्मेशन से रिलेटेड होती है, इंडिविजुअल होती है, जैसे कि पर्सन का एज, नेम, जेंडर, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ऑक्यूपेशन, ये सारे जो चीज़ें हैं, सारी इंफॉर्मेशन है, वो पर्सनल आइडेंटिटी का पार्ट है। Social identity is that part of the identity of the person which relate the individual with the society, with the people. Like it include the information about the caste, religion, language, okay, किस रीजन से बिलोंग करता है, तो ये सारी चीजें। तो सोशल आइडेंटिटी वो एट्रीब्यूट होता है जो इंडिविजुअल को अलग बनाता है। सो ऑब्वियसली द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ट्रू, ये बात सही है। और ना ही सिर्फ सोशल आइडेंटिटी मेड द पर्सन डिफरेंट फ्रॉम अदर, इनफैक्ट द इंडिविजुअल आइडेंटिटी ऑल्सो, ठीक है। सो दोनों ही एस्पेक्ट हैं जो कि इंडिविजुअल को एक दूसरे से अलग बनाते हैं। सो अप टू द 25 क्वेश्चंस वी हैव डील विद, प्लीज राइट इट डाउन दिस क्वेश्चन ऑल्सो। इस क्वेश्चन को भी लिख लीजिए आप सभी कोई। सो वॉट एवर द क्वेश्चन आई एम डिस्कसिंग विद यू, यू ऑल हैव टू राइट इट डाउन ईच एंड एवरीथिंग इन योर नोटबुक। सारी चीजें आपको अपने नोटबुक में लिखनी है चिल्ड्रन। सो कीप दिस थिंग इन योर माइंड। ऐसा मत सोचिएगा कि आप सिर्फ यहीं पे इसको प्रैक्टिस कर रहे हैं। वीडियो मीन्स दैट यू आर वॉचिंग द वीडियो एंड राइटिंग इट इन योर नोटबुक। चलिए, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज अ क्वेश्चन नंबर 26। टेंडेंसी ऑफ द respondent to endorse items, in a socially desirable manner. Tendency of the respondent to endorse item in a socially desirable manner is known as dash. क्या बोलते हैं इसे? रेस्पोंडेंट की ये टेंडेंसी होती है कि वो हर एक आइटम पे को इंडोर्स यानी मार्किंग उसकी सोशली डिजायरेबल मैनर के अकॉर्डिंगली करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? ठीक है, ऑप्शंस आर, इज इट द हेलो इफेक्ट, इज इट नोन एज हेलो इफेक्ट, क्या हम इसे हेलो इफेक्ट कहेंगे? और इज इट नोन एज सेल्फ रिपोर्ट, क्या हम इसे सेल्फ रिपोर्ट कहेंगे? और इज इट नोन एज एक्यूसेंस, ACQUI, स्पेलिंग रॉन्ग नहीं करेंगे, ACQUI ESCENCE, and finally D option, social desirability, ठीक है। क्या आंसर होगा?
बहुत इजी है इस क्वेश्चन का आंसर करना, क्योंकि इसके क्वेश्चन में ही आंसर है। सोशली डिजायरेबल मैनर यहाँ लिख दिया है, तो ऑब्वियसली द आंसर विल बी सोशली डिजायरेबिलिटी। सो द ऑप्शन नंबर डी। Write it down this question also. So around 26 question we have deal with. Total overall हम लोग ने 26 question discuss कर लिया। I just hope children आप इसे note down करते होंगे मेरे साथ साथ। So I just hope is it completed. Now moving to the next question. Question number 27. Question number 27. It is a fill in the blank question and very easy. I think quickly आप आंसर कर देंगे। Value judgment of a person. Value judgment of a person, value judgment of a person about himself or herself, about himself or herself is called value judgment of a person about himself or herself। अपने बारे में अगर आप अपने आप को वैल्यू देते हो, अपने आप को इम्पोर्टेंस देते हो, आप अपने आप को वैल्यू दे रहे हैं, इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, तो एक वैल्यू जजमेंट अपने बारे में अगर आप रखते हो, सो इसके लिए एक टर्म है। एंड व्हाट इज दैट टर्म? सो इट इज नोन एज, इट इज कॉल्ड सेल्फ एस्टीम। किसी पर्सन का सेल्फ एस्टीम बहुत हाई होता है। somebody is having the self esteem low, somebody is having the high self esteem, somebody is having the low self esteem। so self esteem को एवरेज होना चाहिए, बहुत हाई भी नहीं होना चाहिए, बहुत लो भी नहीं होना चाहिए। लो सेल्फ एस्टीम में समटाइम लीड टू लेस सेल्फ कॉन्फिडेंस इन द पर्सन। अगर किसी पर्सन में सेल्फ एस्टीम लो है, वो अपनी वैल्यू बहुत लो कर रहा है, इट मीन्स उसके में कॉन्फिडेंस लेवल नहीं है, और या फिर उसमें ये एक कॉन्फिडेंसी लेवल कह सकते नहीं है, स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड नहीं है कि सो दैट पर्सन विल नेवर स्टैंड एनीवेयर। ओके, सो सेल्फ एस्टीम का होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर डेवलपिंग द पर्सन पर्सनैलिटी। So we have discussed up to the question number 27. Note down this question also, so that we move forward. बहुत easy है, बहुत simple है, अभी तक तो note down कर भी लिया होगा। So now moving to the question number 28. चलिए moving to the question number 28. 27 तक हमने discuss कर लिया। 28. Personality characterized by personality characterized by proneness to P-R-O-N-E, then again N-E-S-S. So proneness to depression is known as dash। इसका भी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का भी आंसर आपके क्वेश्चन में ही है, इफ यू फोकस। सो पर्सनालिटी कैरेक्टराइज्ड बाय प्रोनेस टू डिप्रेशन इज नोन एज, जिस पर्सनालिटी को हम कहते हैं कि उसको डिप्रेशन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, तो उस पर्सनालिटी का नाम क्या होता है? तो दैट इज नोन एज टाइप डी। डी फॉर डिप्रेशन भी आप याद रख सकते हैं, टाइप डी पर्सनालिटी। फाइन, टाइप डी पर्सनालिटी।
Okay. So here children, we have discussed up to that 28 question in our video. So I just expect from you all to work hard and practice more and more. Thank you so much children.